Hello everyone. Hello everyone. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are also preparing pretty well for your upcoming examinations like ICMR and also the CSIR for the December cycle. So this video is particularly dedicated for all those individuals who are studying biotechnology and उनका एक बहुत मेजर ब्रांच होता है बायोस्टैटिस्टिक बिकॉज बायोस्टैटिस्टिक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेज. So I am going to discuss so many important concepts as well as I will also provide solved examples so that you can understand. So if you are preparing for ICMR, this video will help you, and also in the CSIR examination, the same portion is well considered. If you are preparing for ICMR or CSIR, this portion will benefit you a lot. So stay tuned and do watch the video till the end because I have included each and every concept in detail. And if you like my efforts, you can hit the like button and do subscribe my channel for more such videos. Let's start with the very basic that basically in biostatistic, there is a value known as central tendency or the central value which gives a fair idea about the center point of our data set. For example, अगर आपके पास में 10 data set है यानी if you have 10 data sets of a certain characteristic, like अगर आप height note कर रहे हैं 10 individuals का, so what is the average height of all those 10 individuals? So इसके लिए हमें सेंट्रल टेंडेंसी की ज़रूरत पड़ती है. सो बेसिकली द सेंट्रल वैल्यू रिप्रेजेंट्स द एवरेज वैल्यू और द सेंट्रल और यू कैन ऑल्सो से द मिड पॉइंट of your whole data set. Let's say if you have measured heights of 10 different individual, so if you want to know that what is the average height of all the 10 people, and if you want to know that who is the tallest person or who is the smallest person, and also if you want to know that what is the average height of all those individuals, so for that you need the central value which is known as the central tendency. So there are three basic measures of central tendency, that is the mean, median and mode. So this is the basic overview of central tendency. सेंट्रल वैल्यू की हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है जब भी हम एक डेटा सेट के साथ में काम करते हैं बिकॉज वी कांट जस्ट गिव होल डेटा टू एनी इंडिविजुअल. अगर हमें कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना है तो वी कांट जस्ट पुट आवर होल डेटा टू समबडी, but we will put a central value that this is the value that our most of the observation lies, and this is what the central tendency is. Now if we talk about the central tendency or the midpoint value, so basically it has two divisions, that is the average value, and average value में mean आता है, that is the arithmetic mean and geometrical mean. And if you will talk about the positional average, so basically it is the median and the mode. So if we go for the quantitative measurements, so basically there are two, that is the measures of central tendency as I have mentioned, that arithmetic mean, median and mode. And apart from the measures of central tendency, there are measures of spread or dispersion, that is how far your central midpoint deviates from the other values of the data set. So for that we measure the range and standard deviation. So suppose if you have data set and you are saying that the central tendency or the mean is x, so आपने एक एवरेज पॉइंट बता दिया कि x जो है वो पूरे डेटा सेट का एवरेज है. सो बाकी सारे जो आपके ऑब्जर्वेशन है उस डेटा सेट में, जैसे 10 ऑब्जर्वेशन का आपने बता दिया कि एवरेज है x, तो जो डेटा 1 है, डेटा 2 है, डेटा 3 है, वो सब कितना ज़्यादा डेविएट कर रहे हैं उस x वैल्यू से. फॉर दैट रीज़न यू नीड टू कैलकुलेट द वेरिएशन which is also known as the measure of spread or the dispersion. So for that you can calculate the range or the standard deviation. Let me make this very clear. Suppose you have data set, यानी आपके पास 10 numbers हैं 1 2 से लेके 10 तक, and you are saying कि आपका जो average value है that is 4. So आपने बता दिया central value midpoint that is the 4. सो ये जो 1 है या 2 है या 3 है, ये बाकी सारे जो डेटा सेट की वैल्यू है, हाउ मच इट डेविएट्स फ्रॉम द एवरेज वैल्यू दैट इज़ 4. या तो वो 4 कम होगा या 2 कम होगा, यानी वो ज़्यादा भी हो सकता है कम, या कम वैल्यू से भी डिफरेंस हो सकता है. सो उसको एक एक्चुअल वैल्यू देने के लिए हम निकालते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन, यानी कितना डेविएट कर रहा है आपका एवरेज वैल्यू से या ऑप्टिमम वैल्यू से. सो हम कैलकुलेट करते हैं रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन. Now let's start with the very basic, that is the mean for ungrouped data. Now what is ungrouped data and grouped data, you will get to know in this video only. So ungrouped data क्या होता है, जो कि रेंज नहीं दिया रहता है आपको, एक डिस्क्रीट वैल्यूज़ दी जाती हैं, डिस्क्रीट नंबर लाइक 1 2 3 4. बट अगर ग्रुप डेटा की बात करें सो ऐसे लिखा होगा. ग्रुप डेटा कैसे होता है, 1 to 2,
2 2 3, ऑल दीज आर ग्रुप डेटा. बट अगर हम अनग्रुप की बात करें तो सिंपल नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. So if you have to calculate the mean of individual observation, which is also known as the ungrouped data, so the formula is sum of all the values in a population or the data set. Like I have told कि अगर आपने 10 लोगों का हाइट मेजर किया है, सो उन 10 लोगों के हाइट का किसी का 156 सेंटीमीटर, किसी का 160, किसी का 170 एंड इस तरह से हाइट आपको मिला होगा, तो उन सब का सम अपॉन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ द पॉपुलेशन और नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ डेटा सेट. यानी 10 लोग का आपने मेजर किया तो जितना हाइट है उसका सम अपॉन 10 हो जाएगा, क्योंकि आपने 10 लोगों का मेजर किया है. सो दिस इज द एवरेज और द अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला. So this is known as the sample mean and it is denoted by the x bar and the formula is x1 plus x2 plus x जितने भी आपके values हैं data set में xn upon the number of individuals और number of data set in a population. So ये आपका formula था. Now if we compute the mean of a population, अगर हम लोग population का mean calculate करते हैं then this x bar is known as mu. यानी अगर हम पूरे population की बात करें तो वो हो जाता है mu. फॉर्मूला सेम रहेगा, सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज इन अ सैम्पल अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज इन दी सैम्पल. एंड अगर हम बात कर रहे हैं कि एक आपका लार्ज पॉपुलेशन है और उसके एक स्मॉल ग्रुप का एक सैम्पल का आप कैलकुलेट कर रहे हैं, देन जो मीन होगा इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार. एंड अगर पूरे पॉपुलेशन की बात करें एंड अगर आप इस पूरे पॉपुलेशन का कैलकुलेट करें देन इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज म्यू. सो लेट्स टेक इट एन एग्जाम्पल. कैलकुलेट मीन, मीडियन, मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. सो सबसे पहले इसका मीन कैलकुलेट कर लिया जाता है. मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो मीन में सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 58. एंड कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो अपॉन 9 यानी आपका सैम्पल मीन आ गया है 6.44. This is how the mean of ungrouped data is calculated. We will also calculate the median and mode of the same data जब हम उस टॉपिक को पढ़ लेंगे. Now let's solve a question. The question is which of the following graph is bar graph? Option A, B, C and D. इनमें से कौन सा आपको बार ग्राफ दिख रहा है? So the answer for this question is option A. यानी ये वाला जो है वो एक बार ग्राफ है. एंड बार ग्राफ की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ आर ड्रॉन इन एक्स एक्सिस. सो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बार ग्राफ का? सो बेसिकली बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, यहाँ पे देखिए सबका विड्थ जो है वो सेम है, इट इज़ ऑन दी एक्स एक्सिस. एंड वाई एक्सिस पे क्या होता है? वाई एक्सिस वेरिएबल होता है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन दी डिफरेंट वैल्यू. यानी किसी का वैल्यू अगर कम है, भाई देखिए इसका हाइट कम है बिकॉज इसका वैल्यू कम होगा, देन यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज हुआ है हाइट, फिर यहाँ डिक्रीज हुआ है यहाँ, तो जो हाइट है वो वेरिएबल रहता है, यानी वो डिपेंड करता है कि कितना वैल्यू है. सो दिस इज दी बार ग्राफ. So this type of question can be probably asked in the ICMR examination because as you all know कि diagrammatic questions बहुत सारे आते हैं ICMR में. डायरेक्टली आपको डायग्राम देके भी क्वेश्चन ICMR में पूछा जाता है. Now next question. So in which of the following graph is a histogram? अभी हमने पढ़ा bar graph. Now you have to mention that which of the following graph is a histogram. So basically ये जो सेकेंड वाला प्लॉट है, सेकेंड वाला ग्राफ है, दिस इज दी हिस्टोग्राम. एंड हिस्टोग्राम का क्या प्रॉपर्टी होता है? हिस्टोग्राम आर सिमिलर टू बार ग्राफ बट दे आर यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल. यहाँ पे देखिए कोई गैप नहीं है. बार ग्राफ में क्या था? गैप था यहाँ पे, लेकिन हिस्टोग्राम जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है और ये जो विड्थ है वो क्लास इंटरवल बताता है. जैसे ये बहुत ज़्यादा वाइड है सेकेंड वाले प्लॉट से, तो ये जो है इसका क्लास इंटरवल ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, इसलिए ये फिर छोटा है, नैरो है. देन वापस से ये वाइड, यानी इसका क्लास इंटरवल सबसे ज़्यादा होगा. सो हिस्टोग्राम्स आर कंटिन्यूअस ग्राफ एंड उसमें क्या होता है? कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बताता है. एक जो विड्थ है एक बार का वो क्या बताता है? अलग अलग अपना क्लास इंटरवल बताता है. तो यानी कि विड्थ जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है. बट बार ग्राफ में क्या था? बार ग्राफ में ये चीज़ कांस्टेंट थी सबकी एंड यहाँ पे वेरिएबल क्या था? हाइट सबका वेरिएबल था. इट डिपेंड्स ऑन दी वैल्यू. सो दिस इज दी हिस्टोग्राम. नाउ जैसे अगर हिस्टोग्राम पूछा था तो हिस्टोग्राम की जगह अगर आपको पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पूछ दे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. सो बेसिकली अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात करें तो जो थर्ड वाला है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है. यानी जैसे हिस्टोग्राम पूछा है, बार ग्राफ पूछा है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी पूछ सकता है. तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? इट कैन बी ड्रॉन बाई जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अपर साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल्स. यानी
ये जैसे यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, फिर यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे, तो ये क्या किया हमने, ज्वाइन करके बनाया ये जो रेक्टेंगल्स है उनको. सो दिस काइंड ऑफ ग्राफ आर नोन एज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स. सो आई होप आपको हिस्टोग्राम, बार चार्ट एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तो समझ में आ गया होगा. Now let's take another question. What is the formula for the arithmetic mean? Number of observation upon sum of observation, sum of observation upon number of observation, product of the observation. Product तो होता ही नहीं है, and sum of the observation upon product तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि sum of observation upon number of observation. So यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया, number of observation न्यूमरेटर में दे दिया है, sum of observation डिनोमिनेटर में. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन 2, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अभी हमने देखा था अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रेंज. सो इन अ डेटा सेट द रेंज इज द लार्जेस्ट वैल्यू माइनस द स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी जो एक्सट्रीम लार्ज वैल्यू है एंड एक्सट्रीम लो वैल्यू है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज द रेंज. सो द राइट आंसर इज लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू. यानी आपको ये जो डेटा सेट दिया है उसमें अगर आपको बोल दे कि कैलकुलेट द रेंज एंड हाउ विल यू कैलकुलेट, सो सबसे हाईएस्ट वैल्यू यानी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है इसमें से, 15 है, एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, 2 है. तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा इस डेटा सेट का रेंज, क्योंकि लार्जेस्ट 15 था एंड स्मॉलेस्ट है 2. Now one more question, who is the pioneer that contributed to the development of statistic? So development of statistic में pioneering work जो किया था वो किया था रोनाल्ड फिशर ने. So sir, रोनाल्ड फिशर contributed to the development of new theories in statistic. So basically statistic क्या है, statistic deal with the collection, classification and interpretation of data. Many a time statistic के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है that what is statistics? So basically statistics deal with the collection, classification and not just collection and classification but also the interpretation of the data. यानी सिर्फ डेटा कलेक्ट करके उसे क्लासीफाई करके अरेंज करने तक का नहीं होता है. स्टैटिस्टिक मीन्स कि आपको एक सुटेबल इंटरप्रिटेशन देना है. सपोज अगर आपने हाइट कैलकुलेट किया है तो सिर्फ आप हाइट का डेटा रख के क्लासीफाई करके उसको क्या करेंगे, यू हैव टू मेंशन दैट व्हाट इज़ द टॉलेस्ट हाइट एंड व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट हाइट, और मोस्ट ऑफ द जो हाइट है वो कितना है, यानी कॉमन हाइट जो बहुत सारे लोगों में देखा गया है. सो यू हैव टू ड्रॉ सम interpretation out of your data set. So this is what statistic deals about. Now next question is what is the median? Difference between higher half and lower half of the data set, mean of the highest and lowest number in a data sample, value separating higher half from the lower half of a data sample, and difference between the highest and the lowest number. So basically median is the value separating higher half from the lower half of a data sample. यानी what median does is it separates the data from higher half to the lower half. यानी कि जो भी आपके पास डेटा सेट है, सपोज 1 2 3 4 5 इतना है, तो आप क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा इसका 3, बिकॉज इट इज सेपरेटिंग द डेटा इनटू लोअर हाफ एंड हायर हाफ. यानी मिड पॉइंट लिया जाता है जो आधे डेटा सेट में इंक्रीजिंग नंबर्स यानी कम वाले डेटा सेट को रिप्रेजेंट करे, एंड जो नेक्स्ट वाला डेटा सेट है वो हायर हो. जैसे 4 5 क्या है, 3 से ज़्यादा है, 1 2 क्या है, 3 से कम है, यानी लोअर हाफ एंड हायर हाफ. उसको मीडियन क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. सो दिस इज व्हाट मीडियन इज. सो नाउ क्विकली लेट्स सी द डिटेल. द मीडियन डिनोटेड बाय दिस MD इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द सैम्पल when the data are ranked in order of increasing size. यानी सबसे पहले तो आपको मीडियन का अगर क्वेश्चन आता है, द की टिप इज, यानी सबसे पहले अगर आपको मीडियन का क्वेश्चन आता है, यू हैव टू अरेंज द डेटा सेट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. अगर आपने ये नहीं किया तो जो आपका वैल्यू आएगा इट माइट बी रॉन्ग. तो सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है विच इज़ कि आपको डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड्स द ग्रुप इनटू 2 इक्वल पार्ट. जैसा कि मैंने बताया कि 1 लोअर हाफ एंड 1 हायर हाफ में डिवाइड करता है. सो फॉर कैलकुलेटिंग द मीडियन द फॉर्मूला इज m is equals to size of the n+1 upon 2th item. So I will discuss this with an example. So firstly you have to arrange the data in the ascending order of magnitude, यानी सबसे छोटा नंबर पहले एंड सबसे बड़ा नंबर बाद में. So you have to arrange in that order, and after that you have to apply this formula. So let's suppose this is your data set, that you have numbers like 10, 18, 17, 19, 10, 15 and so on. So first step is
फॉर कैलकुलेटिंग द मीडियन यू शुड रिमेंबर द फर्स्ट स्टेप दैट इज अरेंज द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि हमने सबसे पहले डेटा को क्या किया, अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। यानी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा था इसमें, 10 था, उसके बाद 11, 12, 15, 17, 18 एंड देन 19। नाउ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, यानी 9 आइटम है टोटल। तो फॉर्मूला क्या कहता है, 9 + 1। फार्मूला क्या था, n + 1/2 आइटम। सो फार्मूला क्या हो जाएगा, n + 1/2। सो 10/2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5th आइटम। यानी 5th आइटम का जो नंबर है आपके डेटा सीरीज में वो होगा आपका मीडियन। सो 5th आइटम कौन सा है, 15। सो 15 विल बी द मीडियन ऑफ योर डेटा। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन, साइज ऑफ n + 1/2 आइटम। सो 9 + 1/2, सो साइज ऑफ 5th आइटम दैट इज दी 15। यानी 15 जो है वो आपका मीडियन हो जाएगा। सो जो हमने मीन वाला कैलकुलेट किया था आप उसमें भी कैलकुलेट कर सकते हैं सेम इसी फॉर्मूले से मीडियन। सो नाउ व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा सैंपल, 2, 7, 4, 8, 9, 10, 6, 12, 13। इसका मीडियन क्या होगा, यू कैन कैलकुलेट एंड देन यू कैन आंसर। आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को एंड देन यू कैलकुलेट। सो फर्स्टली यू विल अरेंज द डेटा इन दी असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे एंड देन आफ्टर अरेंजिंग द फॉर्मूला n + 1/2। सो सबसे पहले डेटा को अरेंज कर दिया, उसके बाद n + 1/2। सो n + 1/2 से क्या आया फॉर्मूला, 9 + 1/2। तो क्या आएगा, 10/2 टू 5th आइटम। तो 5th आइटम कौन सा होगा, 5th आइटम आपका होगा, 5th आइटम कौन सा है, 5th आइटम आपका है 8। सो 8 विल बी दी मीडियन। यानी अनग्रुप डेटा का मीडियन आपको निकालना है इस फॉर्मूले से। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन अ ग्रुप डेटा। यानी जब डेटा ग्रुप्ड हो, लाइक ऐसा डेटा हो आपके पास 1 to 2, 2 to 3 और 10 to 20, 20 to 30, दिस इज द डेटा known as the grouped data or continuous series data. So for that you need to calculate the median by this formula mentioned in the block. So इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला वाले। What is the formula for the median of group data? So I have already marked the answer. L is the lower limit of the median class, n is equals to total frequency and then ये ब्रैकेट में है n/2 minus CF. CF is the cumulative frequency upon frequency into H. H is the class size or the class interval. So this is the correct formula and अब इसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और अच्छी हो जाएगी। So suppose this is the example to calculate the median of group data. यानी आपको जब आपके क्वेश्चन में मिले कि ग्रुप डेटा है एंड आपको उसका मीडियन निकालना है, सो दिस इज द क्वेश्चन, नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड नंबर ऑफ प्लांट्स, सो दिस इज द ग्रुप डेटा, यू हैव टू कैलकुलेट द मीडियन। सो आप क्या करेंगे सबसे पहले, सो फर्स्ट स्टेप यू हैव टू जस्ट मेक अ टेबल। यहाँ पे प्लांट हाइट मेंशन्ड है एंड यहाँ पे नंबर ऑफ वेराइटीज़, ये सेम यही वाला टेबल है, देखिए 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12 एंड 12 to 15 एंड उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था 4, 8, 22, 10, 4। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, L + n/2 - CF upon F into I. I is the class interval, L is the lower limit, CF is the cumulative frequency, N is the total frequency. So सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा सबसे पहले n/2 and also you have to calculate the cumulative frequency. तो cumulative frequency कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैं वो बता देती हूँ। सो फॉर कैलकुलेटिंग द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें तो आपको मेंशन करी गई थी क्वेश्चन में, यू हैव टू मेक अ थर्ड कॉलम रिलेट टू द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट आपका ऑब्जर्वेशन है 4, देन यू हैव टू राइट 4 एज इट इज़, देन यू हैव टू जस्ट क्रॉस एडिशन आपको करना है। नेक्स्ट वाला क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए आपको 4 + 8 करना होगा, दैट इज़ 12, एंड देन उसके बाद वाले के लिए 12 + 22 दैट इज़ 34, and then 34 + 10 is 44, and then 44 + 4 is, यहाँ पे 50 लिख गया है, यहाँ पे होगा 48, सो यहाँ पे क्या होगा 48 होगा। एंड नाउ इसको आप टोटल कीजिए तो क्या हो जाएगा 28 + 8 कितना होता है 30, 30 + 4 34 एंड 10 44, 44 + 4 48। ये एक तरीका होता है कि आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाला, यानी आपको जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो ही यहाँ लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका आना चाहिए। लास्ट डेटा सेट का जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी सेम एज दी टोटल फ्रीक्वेंसी। तो 48 यहाँ भी आया, 48 यहाँ भी आया, ये 50 गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये 48 होगा।
सो ये आपने निकाल लिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. नाउ यू हैव टू डू n/2. सो n/2 आप करेंगे यानी कि 48/2. तो क्या आएगा आंसर आपका 24 आएगा. सो 24 कहाँ पे लाई करेगा? 24 आपका लाई करेगा इस वाले रेंज में, यानी 24 जो है वो क्या है 34 से छोटा है एंड 44 से भी छोटा है. सो आपका जो सबसे आइडियल क्लास हो सकता है वो क्या हो सकता है? ये वाला ही हो सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पास है किससे? 24 से. सो आपने चुन लिया अपना क्लास साइज. सो यहाँ पे देखिए मैंने कैलकुलेट किया है साइज ऑफ n/2 आइटम. सो 48/2 क्या हो गया? 24th आइटम. तो मीडियन कहाँ पे लाई करेगा? 6 to 9. तो यानी L क्या था आपका? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यानी लोअर लिमिट यानी छोटा वाला नंबर आपने जो मीडियन क्लास लिया है. तो ये 6 क्या हो जाएगा? L हो गया 6 एंड यू हैव n/2 ऑलरेडी 24 है आपका. क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है उस क्लास का देख लेते हैं. सो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या करते हैं? जो आपका मीडियन क्लास है उससे एक प्रीसीडिंग क्लास का लेते हैं. यानी जैसे अगर आपका जो, मैं थोड़ा क्लियर कर लेती हूँ इसको, यानी जैसे आपका मीडियन क्लास ये वाला है 6 to 9, तो जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लिया जाता है वो क्लास प्रीसीडिंग दी मीडियन क्लास लिया जाता है. यानी 34 जैसे आपका है आपके मीडियन क्लास का, तो आप 12 लेंगे, एक पहले वाला लिया जाता है. सो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा आपका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. एंड फ्रीक्वेंसी क्या है उस क्लास की? फ्रीक्वेंसी आपकी है 22. सो यू हैव एन इंटरवल कितना है आपका? 3 है, बिकॉज 0 to 3 3 है, यहाँ भी 3 है, सेम है सबके लिए. तो आपका क्लास इंटरवल है 3. नाउ यू हैव टू अप्लाई एवरीथिंग इन दिस फॉर्मूला एंड अगर आप सारे चीज़ें रखेंगे सो यू विल गेट 7.63 एज योर मीडियन. तो स्टेप बाय स्टेप मैं फिर से बताती हूँ. यू हैव टू फर्स्टली मेक अ टेबल, यानी ये दोनों चीज़ें आपको दी थी, आपने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाला, देन यू विल गो फॉर दी n/2. n/2 के बाद आप डिसाइड कीजिए कि वो जो आपका आइटम है वो किस मीडियन क्लास में लाई कर रहा है, बिकॉज यू हैव टू वहाँ से निकालना होगा आपको लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड वहाँ का क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है वो क्लास प्रीसीडिंग दी मीडियन क्लास होता है. और इंटरवल आपको पता ही चल जाता है एंड फ्रीक्वेंसी भी आपने उस क्लास का देख लिया है. सो यू हैव टू पुट इट इन दिस फॉर्मूला एंड देन जो वैल्यू आएगी वो होगा मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा. आप भी देख लीजिए फॉर्मूला में भी लिखा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रायर टू द मीडियन क्लास. यहीं पे बहुत सारी गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स. जो CF है वो हमेशा मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास का लेते हैं एंड फ्रीक्वेंसी हमेशा मीडियन क्लास का लेते हैं. तो आई होप आपको ये समझ आया होगा. आप इसको एक बार फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं अगर आपको कहीं भी डाउट है. Now next question is, what is the mode in a data set? The lowest number, the number that occurs less frequently, the number that occurs most frequently, the highest number in a data set. So it is the number that occurs most frequently, यानी जो नंबर जितनी बार आएगा वो हो जाएगा मोड उस डेटा सेट का. फर्स्ट यानी जो फर्स्ट एग्जाम्पल जिससे हमने मीन कैलकुलेट किया था, आप इससे मीडियन भी कैलकुलेट कर सकते हैं एंड देन मोड ऑल्सो. मोड क्या हो जाएगा इसका? जो नंबर जितनी बार आएगा वो हो जाएगा मोड. सो यहाँ पे 3 भी आ रहा है कितने बार? 2 बार एंड 2 भी आ रहा है 2 बार. तो 3 and 2 आर मोड ऑफ दिस डेटा सीरीज. यानी जो नंबर जितनी बार ज़्यादा आए उतनी वो ही उसका मोड होता है उस डेटा सीरीज का. फॉर दी अनग्रुप को समझ आया होगा बहुत सारी चीज़ें. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट. सो आई विल अपलोड द नेक्स्ट पार्ट वेरी सून एंड यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि और क्या क्या चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं स्टैटिस्टिक्स से. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.